یہ فلسطینی مسلمان جنہوں نے اسرائیلیوں کو جو اپنے کو اسرائیلی کہتے ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی بدتمیز قوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ ہرگز یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ آپ ان کی مذہب کی پیروی کرو۔ اتنی بدتمیز قوم ہے۔ فلسطینی مسلمانوں نے اس کو پناہ دیا تھا، ان کو کھانے کا ٹھکانہ نہیں، ان کو مہمان سمجھ کے کھانے کا انتظام، کھانا دیا تھا فلسطینی مسلمانوں نے۔ ان اسرائیلیوں کو سونے کی جگہ نہیں تھی، ان کو سونے کی جگہ دیا، بیٹھنے کی جگہ دی۔ آج الٹے چور کوتوال کو ڈانٹنے کے مترادف یہ مہمان بن کے جگہ دیا تھا، آج وہ پوری دنیا کے ساتھ سازش کر کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کو روا رکھا ہے۔ سمجھ رہے 20 لاکھ مسلمانوں میں فلسطین کا اب تک 5 لاکھ مسلمانوں کو ذبح کر چکا ہے۔ اتنی بے دردی کے ساتھ برتاؤ کر رہا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ اسلام میں بھی لڑائیاں ہوتی تھی، لیکن اسلام کا قانون تھا بچوں کو مت مارو، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، عورتوں کو مت مارو، بوڑھے بزرگ کو مت مارو، جو لڑنے آیا ہے، جہاد کرنے آیا ہے، ان کو صرف مارو۔ لیکن یہ ایسا حیوانیت اور شیطانیت کی جنگ ہے کہ یہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ذبح کیا جاتا ہے۔ اور کچھ بیمان ملک، ایران جیسے شیعہ، ترکی جیسے شیعہ ملک اعلان کرتا ہے، دھمکی پر دھمکی دیتا ہے کہ ہم اسرائیلیوں کو ایسا کریں گے ویسا کریں گے۔ یہ بیمان آج تک ایک بھی پولیس کو بھیجنے کا کام نہیں کیا فلسطین کے اندر، سمجھ رہے؟ ایک بھی آدمی نہیں بھیجا تو 2 ٹرک کفن بھیجا۔ ارے کفن بھیج کے تم کیا کرو گے؟ وہاں کفنانے والا، نہلانے والا، غسل دلانے والا نہیں ہے، قبر کھودنے والا آدمی موجود نہیں ہے۔ اس کو مارنے کے بعد ٹرک میں لوڈ کر کے باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ ان بیمان قوموں کے بارے میں پورو پردھان منتری سورگی اٹل بہاری واجپئی جی بولے تھے کہ فلسطینی مسلمانوں نے تم کو پناہ دیا تھا، یہودوں، اسرائیلیوں، تم کو چاہیے کہ اس کا فلسطین چھوڑ دو۔ لیکن ہمارے موجودہ پردھان منتری تو تھوڑا بیان بدلے، لیکن پہلے تو مکمل امریکہ کا ساتھ دے رہے تھے اور فلسطینیوں کا خلاف اسرائیلیوں کا ساتھ دے رہے تھے۔ دوستو، یہ نہتے مسلمان ہیں، ان کے پاس کھانے کا سامان نہیں ہے، لڑنے کے لیے کوئی تلوار نہیں، کوئی میزائل نہیں ہے، کوئی توپ نہیں ہے۔ یہ 20 لاکھ فلسطینی مسلمانوں کو ارغمال بنا کے رکھا ہے، غلام بنا کے رکھا ہے، جب چاہتا ہے اس کو ذبح کرتا ہے۔ ان مسلم لڑکیوں کے ساتھ بلاత్కాری کے بعد ان کی عزت کو لوٹ کر اس کے بعد اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ذبح کیا جاتا ہے۔ ایسا ظلم دنیا نے نہیں دیکھا ہے، لیکن کمزور ہے۔ جناب صدام حسین بھی دنیا سے جا چکے ہیں۔ کون ہے آواز بلند کرنے والا جن مسلمانوں کا ساتھ دے؟ دیکھ رہی ہے پوری دنیا، 10,000 5,000 کر کے روزانہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے ذبح کر کے ان کو ندیوں میں پھینکا جا رہا ہے۔ آج مسلمان کا خون کا کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، کوئی آہ کرنے والا نہیں ہے۔ یہ بھارت دیش کے باپو مہاتما گاندھی جی جو اہنسا کے پجاری تھے، ان کا دیش تھا۔ یہاں کے لوگ بھی جا کر کے اسرائیلیوں کا ساتھ دے دینے لگا کہ ان کو مار کے ختم کرو مسلمانوں۔ کیا یہ ظلم جائز ہے؟ بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، کوئی آہ کرنے والا نہیں۔
ये हुकूमत हमको चलाना सिखाते हैं। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि सैयदुल कौम खादिमुहुम, कौम का सरदार, कौम का मुखिया, कौम का विधायक, कौम का प्रधानमंत्री, कौम का नेता उम्मत के खादिम होते हैं, उम्मत के नौकर माने जाते हैं। लेकिन यहाँ बोलने को तो ये भी बोल रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोले हैं कि मैं देश का चौकीदार हूँ, देश का खादिम हूँ, देश का नौकर हूँ। कभी ये भी कहते हैं कि मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला उठा के चल दूंगा। बात बिल्कुल सही है, बोल तो रहे हैं इस्लाम की बात, बोल तो रहे हैं फारूक आजम की बात, बोल तो रहे खुलाफा राशिदीन की बात, लेकिन इस पे जर्रा बराबर सच उतरे तब तो मेरी भाई। अल्लाह ने कुरान में कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू मअस-सादिकीन, ईमान वालों सच्चे लोगों के साथ हो जाओ, लेकिन सच्चे लोगों के साथ नहीं। हजरत उमर ने प्रैक्टिकली तौर पर सैयदुल कौम खादिमुहुम का सच्चा मिज़दाक बन के दिखाया। हजरत उमर रोजाना गश्त करते थे, छोटा मुल्क नहीं था, सऊदी अरब, कुवैत, ईरान, अफगानिस्तान, इराक, ये सब मिला के एक मुल्क था और सबके प्रधानमंत्री, सबके खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। रातों रात घूमते थे, गश्त करते थे, खबरगिरी करते थे। अल्लाह, किसी घर में जा रहे तो देख रहे कि एक औरत घर में चूल्हा में हांडी में पानी गर्म कर रही है, कुछ बना रही है, लेकिन तैयार ही नहीं। हजरत उमर 1 घंटा तक इंतजार किए, खाना बन के तैयार ही नहीं हो रहा। हजरत उमर ने दस्तक लगाया रात में। बूढ़ी ने कहा कौन? कहा मैं एक आम आदमी हूं। क्या मैटर है? खाना क्यों नहीं बन के तैयार हो? बच्चे रो रहे हैं खाने के लिए। कहा खाना नहीं है कैरोज से, खाने का पकाने का सामान नहीं है, मैं ऐसे पानी रख दिया हूँ, पानी पे कुछ पत्थर रख दिया हूँ और बच्चों को दिलासा दे करके सुला रहा। हजरत उमर उसी वक्त बैतुल माल में गए, आटा वजन करके लाके उस घर पे दिया और कहा कि बूढ़ी अम्मा अगर आप नहीं बना पाएंगे तो मैं अपने हाथ से रोटी पका के इनको खिलाने का काम कर रहा हूँ। ये थे देश के प्रधानमंत्री, वाकई सैयदुल कौम खादिमुहुम, देश के चौकीदार ये थे। अल्लाह अकबर। हजरत उमर ही का दूसरा वाकया है कि हमारे घर में, आपके घर में हमारी दादी, नानी या बूढ़ी मम्मी हो जाए, बिस्तर पे पेशाब पाखड़ा करने लगे तो सब लोग बोझ समझते हैं, बेटी भी बोझ समझती है, बहू भी समझती है, बेटा भी समझते हैं। लेकिन अमीर अल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब देश के प्रधानमंत्री पे कुर्बान हो जाइए मेरे भाई, क्या करते थे? एक बूढ़ी औरत को रोजाना खाना बना के हजरत उमर अपने हाथ से उठा के खिला के आते थे, समझ रहे? और उस बूढ़ी औरत बिस्तर पे अपने कपड़ों पे पाखना कर देती थी तो एक छोटी बच्ची को, खादिमा को ले जाते थे हजरत उमर और रोजाना उससे कपड़ा बदल के सफाई करवाते थे। 4 साल तक ऐसा किया। हजरत तुफैल दौसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस घर के अंदर देखा कि अमीर अल मोमिनीन उमर रोजाना इस घर में जाते, क्या मैटर है? हजरत तुफैल दौसी घर के अंदर चले गए, जाके देखते हैं कोई नहीं, एक बूढ़ी औरत लेटी हुई है, जबान हिला रही है, कायदे से बोल भी नहीं पाती है, तुतलाहट के साथ बोलती है। कहा बूढ़ी अम्मा ये आदमी कौन है जो आते रहता है आपके पास? क्या मैं नाम नहीं जानती हूँ, लेकिन मुझको 4 साल से रोजाना अपने हाथ से खाना उठा करके खिला के जाते हैं और मेरे पेशाब पाखना जो मैं कपड़े में कर देती हूँ, उठ नहीं पाती हूँ, चल नहीं पाती हूँ, तो रोजाना उसकी एक खादिमा आती है और वो खादिमा मेरे कपड़ों को बदलवा देती है, साफ करा। हजरत तुफैल दौसी ने कहा पहचाने उनको, वो कौन है? वो हजरत उमर इब्न खत्ताब, यही देश के प्रधानमंत्री है, खलीफतुल मुस्लिमीन है। ये हजरत उमर का हाल है। हजरत उमर गश्त कर रहे हैं,
चुगलखोरी की गरज से किसी घर में अगर कोई सीआईडी गिरी करे तो हराम है, लेकिन अगर उनकी इस्लाह के लिए, जैसे देश के सीबीआई रात के 12 बजे सब खून छापामारी कर देता है, उनके लिए करना जायज है, क्योंकि देश के वो सुरक्षा है, बल के लोग हैं। हजरत उमर रात में पहरादारी कर रहे हैं। किस घर में? एक दहियार के घर में, दूध बेचने वाला का घर में। तो देख रहे हैं कि 10 टीना दूध है और 10 टीन पानी ले आए और उसको 20 टीन बना दिए, दूध में पानी मिला रहे हैं। और दहियार की मां बोल रही है कि बेटा, दूध में तुमने पानी मिलाने का काम किया, अगर ये खबर अमीर अल मोमिनीन देश के प्रधानमंत्री उमर इब्न खत्ताब को मिल जाए तो तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगा, तुमको काट डालेगा, तुमको मार डालेगा। इसलिए बेटा, पानी मिलाने का काम यहाँ ना करो, पानी मिलाने का काम रात की तारीकी में घर में रात के 1 बजे करना, ताकि उमर को पता ना चले। दहियार की बीवी बोल रही है कि अमीर अल मोमिनीन, उमर को खबर मिलने पर तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए मेरा शौहर दूध में पानी मिलाने का काम बाहर मत करना, घरों के अंदर रात की तारीकी में करना। ये दहियार के घर में आपस में सबकी बातें हो रही है, हजरत उमर सुन रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं, सीआईडी के तौर पे हजरत उमर सुन रहे हैं। लेकिन 15 साल की दहियार की बेटी बोल रही है कि अम्मी जान, आप लोग सब इस तरह बोल रहे हैं, लगता है कि उमर ही अल्लाह है। नौजुबिल्लाह। का उमर को देख के इतना डर रही हो? का उमर के डर से पानी रात की तारीकी में मिलाओ, उमर को पता ना चले? और उमर के रब से क्या ख्याल है? फारूक आजम का रब अल्लाह है, उस अल्लाह से डरना चाहिए जो अल्लाह रात की तारीकी में काले पत्थर पर काली चींटी के रेंगने की आहट को जानता है और सुनता है और देखता है। अल्लाह से डरो, उमर के रब से डरो, उमर से नहीं। 15 साल की बच्ची बोल रही। हजरत उमर वहां से जासूसी करके रात में वापस चले गए। सुबह के वक्त आए, दहियार लोग घबरा गए कि रात ही में हमने दूध में काफी पानी मिलाया है। उमर सुबह आ गए, कहीं खबर तो नहीं लग गई। हजरत उमर ने कहा, डरने की कोई बात नहीं है, मैं आया हूं, तुम्हारे घर में एक लड़की है, जो लड़की सबसे ईमानदार है, अल्लाह वाली है, इसलिए मैं उसको अपनी बेटा के साथ शादी कराने के लिए, बहू बनाने के लिए तैयार हूं। बूढ़ी बोलने लगी, वो मेरी पोती है? आप इतने बड़े आदमी अमीर अल मोमिनीन उमर अपने बेटा से शादी कराओगे इस गरीब दहियार की बेटी से? कहा, जी हाँ, रात में मैंने सीआईडी गिरी की है, जिसमें सब लोग बेईमान निकले, सब लोग उमर से डर रहे थे, लेकिन ये 15 साल की लड़की बोल रही थी कि उमर के रब से डरने की जरूरत है। असल ईमान, असल सच्चाई, असल तकवा, असल परहेजगारी इस 15 साल की लड़की के अंदर है, इसलिए इसको मैं बहू बनाने के लिए तैयार हूं। मेरे भाइयों, ये हजरत उमर, लेकिन बसा औकात कभी कभी अच्छा मुखिया और विधायक और अच्छा मौलाना हो जाए, मौलाना सगीर साहब नदवी कलेजा निकाल के भी दे दे, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि सबकी नजर में अच्छा हो जाए। कुछ ना कुछ लोग खिलाफ निकलेंगे, हर एक आदमी के साथ ही मामला है। एक बहुत बड़े साहबी थे, हजरत सईद बिन आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री समझ रहे हैं ना, जैसे बिहार के चीफ मिनिस्टर हमारे माननीय जनाब नीतीश कुमार जी है, इस तरह हिम्स के गवर्नर, हिम्स के मुख्यमंत्री बनाया गया था उमर के दौर में सईद बिन आमिर रजी अल्लाह ताला। कैसा मुख्यमंत्री, जरा देख लीजिएगा, कैसा चीफ मिनिस्टर, सैयदुल कौम खादिमुहुम का सच्चा मिजाज देख लीजिए। हजरत सईद बिन आमिर देश का मुख्यमंत्री है एक स्टेट का। हजरत उमर 2 साल के बाद आई, प्रधानमंत्री की हैसियत से दौरे में आए, पब्लिक को जमा किया, कहा मुख्यमंत्री साहब कैसा है? सबने कहा खराब।
حضرت عمر کہنے لگے میں اتنا اچھا آدمی، تہجد گزار، اتنا پڑھا لکھا نیک، سعید بن عامر کو یہاں کا گورنر بنایا ہوں، لیکن یہاں کے سب لوگ کر رہے ہیں خراب۔ کارن کیا؟ سب کو کھڑا کیا لائن کا، بولو کیا میٹر ہے تم سب کا؟ ایک نے کہا کہ سعید بن عامر تو ٹھیک ہے، لیکن خرابی کیا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 10 بجے رات کو گھر میں جو گھس جاتے ہیں تو کتنوں آواز لگائیے باہر نہیں نکلتے۔ دوسرے نے شکایت کی کہ امیر المومنین عمر، یہ آپ کا جو بنایا ہوا مکھ منتری ہے گورنر صاحب، یہ صبح کے وقت 11 بجے باہر آتے ہیں، فجر پڑھ کے جو گئے گھر تو نہیں نکل کے آتے۔ تیسرے نے شکایت کی کہ یہ ہفتے میں ایک دن غائب ہو جاتے ہیں، کہاں جو چلے جاتے ہیں ان کو تلاش کے نہیں ملتا ہے۔ چوتھے نے شکایت کی کہ یہ پاگل ہے، ان کو مرگی کی بیماری ہے، بات کرتے کرتے کبھی بے ہوش ہو کے گر جاتی ہے۔ حضرت عمر نے کہا چرچ معاملہ، کہا سعید بن عامر کھڑے ہو جاؤ، مکھ منتری صاحب جواب دو، کیا میٹر ہے، ایسا کیوں معاملہ ہے؟ حضرت سعید بن عامر نے کہا کہ میں گپ چھپا کر چرا کے کچھ عمل کرتا تھا جو کسی کو پتا نہیں تھا، لیکن آج مجبوراً مجھ کو کہنا پڑ رہا ہے۔ میں رات کے 10 بجے اس لیے باہر نہیں نکلتا ہوں، دن بھر رعایا کے حقوق ادا کرتا ہوں اور رات میں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ لوگ آواز لگاتے ہیں لیکن میں سن پاتا ہوں، نکلتا نہیں۔ اگر یہ غلط ہے تو بولیے۔ حضرت عمر نے کہا یہ تو اچھا عمل ہے، پبلک نہیں سمجھ رہی ہے، یہ تو رات بھر اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، دن بھر رعایا کے حقوق کی ادائیگی اور دن رات بھر اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں لگا۔ دوسرے نے شکایت کی تھی، کہا کیا دن 11 بجے باہر نکلتے؟ کہا سعید بن عامر کیا معاملہ ہے، تیرا ماجرا کیا ہے کہ رات دن کے 11 بجے باہر نکلتے؟ حضرت سعید بن عامر تھر تھر کانپ رہے تھے، بولنے لگے امیر المومنین عمر، میرا حال یہ ہے، میں اس اسٹیٹ کا مکھ منتری ہوں، لیکن میرے گھر میں اس شاہی محل میں اس مکھ منتری آواز میں ایک نہیں تو نہیں 100 سے زیادہ یتیم بچے پالے جا رہے ہیں۔ جتنے اس اسٹیٹ کے یتیم، غریب، اناتھ، بیوہ ہے، سب کو میں نے یہاں جمع کر کے رکھا ہے۔ کیا کرتا ہوں کہ روزانہ میں بیت المال سے آٹا وزن کر کے لاتا ہوں اور دیش کا مکھ منتری اپنے ہاتھ سے باورچی کی طرح آٹا گود کر، روٹی پکا کر، سبزی بنا کر اپنے ہاتھ سے 100 یتیم بچے کو کھلانے کا کام کرتے ہیں۔ کھلاتے کھلاتے امیر المومنین کبھی 10 بج جاتا ہے، صبح سے کھلانا شروع کر دیتا ہوں، کبھی 11 بج جاتا ہے۔ اگر یہ جرم ہے تو میں معافی کے لیے تیار۔ امیر المومنین عمر بن خطاب کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، رونے لگے کہ ایسا مکھ منتری، اللہ اکبر، جو یتیم کی پرورش میں لگا رہے۔ یہ لوگ دے سید القوم خادم، قوم کا سردار، دیش کا جنتا کا خادم ہوا کرتے ہیں۔ میرے کہا تیسری شکایت کیا ہے کہ امیر المومنین یہ ہفتے میں ایک دن غائب ہو جاتے ہیں، باہر نہیں نکلتے۔ حضرت عمر نے کہا یہ کیا ماجرا، جواب دو۔ حضرت سعید بن عامر بولنے لگے کہ امیر المومنین میرے پاس ایک جوڑا کپڑا کے علاوہ تیسرا کپڑا نہیں۔ ایک جوڑا کپڑا سمجھ رہے ہیں نا، ایک ہی کو کرتا، ایک ہی کو پاجامہ، یا ایک ہی کو لنگی، ایک ہی کو شرٹ، یا ایک ہی کو فل پین، ایک ہی کو شرٹ، سمجھ لیں۔ تیسرا کپڑا نہیں، دیش کا مکھ منتری ہے، دنیا دکھا سکتی ہے، پوری دنیا کو چیلنج ہے کہ ایسا منسٹر، ایسا راجہ، ایسا پردھان منتری دکھا سکتے ہو، ایک جوڑا کپڑا کے علاوہ دوسرا کپڑا نہیں ہے۔ دھوتے کیسے؟ کہتے ہفتے میں ایک دن چلا جاتا ہوں باہر اور ندی نالے کی کنارے، بیابان، جنگل، پہاڑ کی بیچ میں جا کے ایک معمولی گمچھا یا تولیہ پہن کے بیٹھ جاتا ہوں اور اس کپڑے کو اسنان کی گھاس، اس زمانے میں صابن نہیں تھا، اس اسنان کے گھاس سے کپڑے کو دھل کے سکھاتا ہوں۔ گرمی کے موسم پہ جلدی کپڑا سوکھ جاتا ہے، پہن کے واپس آ جاتا ہوں، جاڑی کے موسم میں 4 گھنٹہ لگ جاتا ہے، اس لیے میں ہفتے میں ایک دن غائب ہو جاتا ہوں۔
जरा गौर करो मेरे भाई। चौथा शिकायत क्या किया था? चौथी शिकायत कि अमीर अल मोमिनीन ये पागल है। कहा क्यों? मिर्गी की बीमारी है, बात करते करते बेहोश होके गिर जाते हैं। कहा सईद बिन आमिर क्यों बेहोश हो जाते हो, क्या माजरा है तुम्हारा? कहने लगे अमीर अल मोमिनीन, जब मैं मुशरिक था, जब मैं हिंदू था, तो कुफार मुशरिकीन के नौजवान हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फांसी पे चढ़ाने के लिए ला रहे थे, तो मैं भी हिंदुओं के नौजवान बजरंगियों के साथ मैं भी था सीना तान। मैं आज मुसलमान हो गया हूँ, लेकिन उस वक्त हिंदू था, मैं मुशरिक था। देखा मैंने कि खुबैब को लोग फांसी में चढ़ा रहे थे। एक सवाल पूछ रहे थे। क्या सवाल? खुबैब एक जुमला बोल दो तुमको फांसी से माफ कर दिया जाएगा। कौन सा जुमला? कहा बोल दो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर में कांटा चुभ जाए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर में कांटा चुभ जाए। अमीर अल मोमिनीन जरा गौर करें, हजरत खुबैब ने कहा था कि कांटा चुभने की बात करते हो, मैं एक बार क्या 10 बार इस फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये जुमला कहने के लिए तैयार नहीं हूँ कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर में कांटा चुभ जाए। आज तो हम इतने कमजोर मुसलमान हैं मेरे भाई, ये थप्पड़ लगता है, कहता पढ़ो जोर से जय श्री राम, पढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो जमाना था कि हजरत खुबैब को फांसी पे चढ़ा दिया गया। जब वो मंजर मैं याद करता हूँ, वो मंजर जब मुझको याद आता है, हजरत सईद बिन आमिर कहते हैं मैं बेहोश होकर गिर जाता हूँ कि खुबैब किस इस्तेदाद और किस सच्चाई के साथ इस्लाम का मुकाबला करने का काम किया था। मेरी भाई आप सभी लोग जानते हैं, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सीने पे पत्थर रख दिया जाता था, गरम रेतों में चैत बैसाख की धूप में लिटा दिया जाता था। कहा बिलाल कलमा छोड़ दो, नहीं तो ये सजा दी जाएगी। हजरत बिलाल कलमा पढ़ना किसी भी हाल पे छोड़े नहीं। मेरे भाई कितनी पक्के सच्चे ईमानदार लोग थे, जरा गौर करो। हमारी माएं, आप समझती होगी कि औरत जात कमजोर होती है, नहीं नहीं, आपको पता होना चाहिए पूरी दुनिया में फिरौन का सजदा सारी दुनिया कर रही थी। फिरौन जिसने दावा किया था कि मैं ही अल्लाह हूं, मैं ही खुदा हूं, फिरौन ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाता था, चारों तरफ गोल होकर लाखों आदमी फिरौन का सजदा करते थे। एक दिन किसी ने फिरौन को बता दिया कि हम सबों को सजदा करा रहे हो, लेकिन फिरौन तुमको पता है तेरी बीवी आसिया अलैहिस्सलाम तुमको पूजा नहीं कर रही है, तुमको खुदा नहीं मान रही है। फिरौन गुस्से से सिंहासन से उठ के अंदर जाता है, अंदर जाके कहता है अपनी बीवी से कि आसिया मुझे खबर लगी है कि तुम मुझको अल्लाह नहीं मानती हो। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने, मेरी माए इबरत के लायक है, पकड़ने के लायक है, हजरत आसिया ने क्या बोला कि फिरौन तू मेरा शौहर है, मैं तुम्हारी खिदमत के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम अल्लाह नहीं हो सकते हो, तुमको मैं अल्लाह नहीं मान सकती हूँ। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम का ये जुमला कहना था, फिरौन गुस्से से आग बगोला हो गया। हजरत आसिया रज़ी अल्लाह अलैहिस्सलाम के हाथ पर पैर पर लोहे का कील ठोक दिया, तलवार लेके खड़ा हो गया। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम उस तकलीफ, उस दर्द भरी आवाज में बोले थे कि अल्लाह जिस जन्नत की लालच में, जिस आखिरत की लालच में इतनी तकलीफ बर्दाश्त कर रही हूँ, ये अल्लाह वो जन्नत कैसा घर है, वो जन्नत कैसा बाग है, मुझे दुनिया पे दिखा दिया जाए। अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है, कहा जिब्रील, मीकाईल, इसराफील, मलकुल मौत जाओ हजरत आसिया अलैहिस्सलाम को दुनिया में जन्नत दिखा दो। अल्लाह ने कह दिया था कि दुनिया बनने के बाद कयामत की सुबह तक किसी को दुनिया में जन्नत नहीं दिखाया गया, जन्नत में नहीं उठाया गया, लेकिन जाओ फिरौन की बीवी हमारी नेक बंदी हजरत आसिया अलैहिस्सलाम को डायरेक्ट जन्नत
पे उठा के ले आओ। अम्मा हजरत आसिया अलैहिस्सलाम को दुनिया में जन्नत दिखा दिया गया था। मेरी माए, ये मजबूत, ईमानदार, सच्चे लोगों के साथ होने वाले ये वो लोग थे जिसको अल्लाह ने कहा था ईमान वालों सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। ईमान वालियों, ईमान वालों, सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। ये सच्चे लोगों के साथ हो गए थे। मेरी भाई, ये कौन? हजरत आसिया अलैहिस्सलाम थी। नबी के दौर में हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा हजरत यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी है, हजरत अम्मार की माँ है। हजरत सुमैया के सामने अबू जहल मरकबे जहल था, तलवार लेके खड़ा है। कहा सुमैया तुमको चीर दिया जाएगा, तुम्हारे एक टांग पे जंजीर बांधकर एक घोड़े पे बांध दिया जाएगा, दूसरे पैर पे एक जंजीर बांधकर दूसरे घोड़े को बांध करके दोनों घोड़े को भगा दिया जाएगा, तुमको चीर दिया जाएगा, फाड़ दिया जाएगा। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजरत अम्मार की माँ है, हजरत यासिर की बीवी है, रोती हुई आवाज में कहा था, ये अल्लाह तेरे जन्नत की लालच में कर रही हूँ, ये अल्लाह तेरा कौल है, ईमान वालों सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। ये अल्लाह मैं सच्चे लोगों के साथ होना चाहती हूँ, मैं सिद्दीकीन, शुहदा, नबियों के साथ, इमामों के साथ होना चाहता हूँ। जरा गौर कीजिए, हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को चीर दिया गया, लेकिन कलमा तौहीद पर जर्रा बराबर असर नहीं पड़ा। मेरे भाई, ये कौन लोग थे? ईमान वालों सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। ये वो लोग थे, सैयदुल कौम खादिमुहुम, कौम का सरदार, देश का नौकर होता है, जनता का नौकर होता है। मेरे भाई, इमामों में भी बड़े बड़े लोग गुजरे हैं। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, इनको खल्के कुरान का मसला लेकर कोड़े लगाए जा रहे थे। कहा ये कोड़ा अगर किसी हाथी को लगाया जाता तो हाथी भी चिंगार उठता, लेकिन हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह ने कुरान को मखलूक कहने पे तैयार नहीं हुए। मेरे भाई, कौन? इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाहु अकबर। बड़े बड़े मौलाना भी ईमानदार थे। आप शिकायत करते होंगे कि मेरे भाई मौलाना लोग भी आजकल बहुत बेईमानी कर रहे हैं। जी हाँ, ये कुरान और हदीस की बात है। जब पब्लिक 90% बेईमान हो जाएंगे तो मौलवी भी 50% बेईमान हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। जमात अहले हदीस के बड़े आलिम शेखुल कुल फिरकुल अल्लामा सैयद नसीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह दिन भर फ्री में सफेद कुर्ता पाजामा पहन के बुखार